होते हैं, लाइक सी चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म. ओके, क्लियर? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग आइसोमेरिज्म. One more, that is functional isomerism. Functional isomerism. Understand? So now chain isomerism, position isomerism, metamerism, tautomerism, ring isomerism and functional isomerism. These are the kinds of structure isomerism. These are the kinds of structure isomerism. Let's see, in class 10th ICSE board, we have to learn, we have to read few of them, like chain isomerism, position isomerism, functional isomerism and metamerism. Okay, metamerism. These three kinds we will study in class 10th and other ones is not there in your syllabus. Okay, so let's see first chain isomerism. Chain isomerism. Okay, in chain isomerism, the organic compound having same molecular formula but different number of carbon atom in main chain. ठीक है, same molecular formula but what is different? Different number of carbon atoms in main chain. That is chain isomerism. Okay, so what are the definition of chain isomerism? Listen carefully. Organic compounds having same molecular formula but different number of carbon atoms in main chain known as chain isomers, and this phenomenon is known as the chain isomerism. Chain isomerism started from the 4 carbon atoms. The compound having the at least 4 carbon atom. If the compound having 1 carbon atom like methane, ठीक है, having 2 carbon like ethane, having 3 carbon, 3 6 8. Okay, then these compound will not show the chain isomerism. ठीक है, it is chain isomerism started from the 4th carbon onward. Let's see one example. Suppose I am having one compound CH3, CH2, CH2, CH3. This is the compound. Molecular formula of this compound. How many carbon atoms are there? 1 2 3 4. 1 2 3 4. Then carbon is 4. How many hydrogen? 3 3 6 4 10. Means this is the molecular formula of this compound. Okay, तो once we will represent this compound. 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को हमने कैसे अरेंज कर दिया? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, like this way. ठीक है, 4 carbons are there. Now 10 hydrogen, corner hydrogen attain 3 hydrogen, carbon corner carbon gains 3 hydrogen, then its valency will be the 4 3 1 4, and here 3 1 4, and in between the carbon atoms which are coming in between containing 2 hydrogen atoms. ठीक है, 2 hydrogen 2 bonds 4, 2 hydrogen 2 bonds 4. So now these compounds, whatever I have written here, this is the alkane. All the carbons are bonded with single bond. Then now what is the name of this compound? This compound is, you know how many carbon atoms are there? 4 are there. This is the straight chain. So now 4 carbon, which word root is there? But. And all the carbon atoms are singly bonded. Then we will add as a suffix ane. तो क्या हो गया ये? Butane. Understand? What is this?
ब्यूटेन एंड नाउ दिस चेन इज स्ट्रेट. ठीक है, हियर वी विल ऐड नॉर्मल ब्यूटेन. गॉट इट बेन? ये तो हमारा एक कंपाउंड हो गया C4H10 को हमारा एक कंपाउंड तैयार हो गया नॉर्मल ब्यूटेन. अब इस कंपाउंड इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का कोई दूसरा कंपाउंड भी हम बना सकते हैं. ठीक है, जिसकी चेन में डिफरेंस हो. ठीक है, चेन में. ओके, तो नाउ ये चेन है हमारी 4 कार्बन एटम्स की चेन है. और अगर इस चेन में हम सपोज इसको हम इस तरह से कर दें, अभी भी हमारे पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन है. अब हाइड्रोजन हमारे पास कितना है? 10 है. तो यहाँ पे हर कॉर्नर्स पे आप 3 3 लगा दो. 3 3 एंड 3 9 हो गया. और यहाँ पे हाइड्रोजन के कार्बन की कितनी बैलेंसी हो रही है? 1 2 3. और कितनी रह रही है? 1. तो 1 को हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन से. ठीक है, तो नाउ 3 3 6 3 9 1 10. तो व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज another compound of this molecular formula having different in number of carbon atom in main chain. अब यहाँ पर देखो, हम इसका नाम लिखना चाहते हैं. कैसे लिखेंगे? तो हमें क्या होगा, कार्बन की एक पहले क्या होगा, कार्बन की मेन चेन हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आएंगे. तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 एक ये हो सकता है, 1 2 3 एक ये हो सकता है. ठीक है, और 1 2 3 ये भी हो सकता है. मीन्स किसी भी साइड से हम नंबर चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं. तो कोई सा भी चेन आप सिलेक्ट कर लो. लो, मैंने स्ट्रेट वाला कर लिया. ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3. ठीक है, 3 कार्बन से हमारा कौन सा वर्ड रूट पड़ता है? प्रोप. और सारी कार्बन हमारे क्या है? सिंगली बॉन्डेड है. तो हमने क्या कर दिया इसमें? एन. एल्केन हो गया, प्रोपेन. बट अभी हमारा कंपाउंड का नेम कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, यहाँ पर देखो, अब हमने नंबरिंग करना है. नंबरिंग 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन. ठीक है, इधर से भी हम कर सकते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन. ये तो इत्तेफाक है कि सेकेंड कार्बन से ही हमारा ब्रांच लगा हुआ है, एक अनदर कार्बन लगा हुआ है. ठीक है, तो अगर हमारा नंबरिंग करने पर चाहे इस साइड से करें चाहे इस साइड से करें, किसी भी साइड से करने पर अगर हमारा जो ब्रांच है वो सेम नंबर पर आता है तो वी आर फ्री टू नंबरिंग फ्रॉम एनी साइड. ठीक है, तो हम किसी भी साइड से ले लेंगे. हमारे पास सेकेंड कार्बन पर ये ग्रुप लगा हुआ मिल रहा है. ठीक है, तो ये हमारा जाएगा, जो हमारा साइड चेन है वो हमारा जाएगा प्रीफिक्स में. तो क्या हो जाएगा? ये 2 पर पोजीशन लिखेंगे, किस कार्बन से प्रीफिक्स लगा है? 2 पर. और कौन सा लगा है? ये कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप का कौन सा है? मेथिल ग्रुप. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मेथिल, 2 मेथिल प्रोपेन. नाउ सी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, 1 2 3 4 कार्बन. ठीक है, बट हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 1 10. मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों कंडीशन में सेम है लेकिन चेन में डिफरेंस है. यहाँ पे स्ट्रेट 4 कार्बन की चेन थी, यहाँ पर आपकी 3 कार्बन की चेन है और एक हमने ब्रांच लगा दिया. ठीक है, तो नाउ ये हमारा क्या हो गया? चेन आइसोमर्स हो गए. ये दोनों हमारा क्या हो गया? चेन आइसोमर्स हो गए. ठीक है, और दिस फिनोमिनन इज नोन एज द चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर डिफरेंट इन मेन चेन्स. मीन्स 2 कंपाउंड हमने बनाए जिसके नंबर ऑफ कार्बन एटम जो मेन चेन हमारा है वर्ड रूट, ठीक है, उसमें डिफरेंट है. यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 4 है. गॉट इट? इट इज़ क्लियर टू यू? चेन आइसोमेरिज्म. ओके.